Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 7 of Software Design and Architecture. Before I start my today's lecture discussion, I would like to give you a little bit recap about our last lecture. So students, what we see in our last lecture, we see the example of automated teller machine and we see how it works. फिर हमने इस ऑटोमेटेड टेलर मशीन की केस स्टडी से डिज़ाइन स्पेसिफिक ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन किया इनटू 22 to 23 डिफरेंट डिज़ाइन ओरिएंटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड देन वी सी द use case template for this ATM case study. Now students, let's start our today's lecture discussion from for the ATM example. So now here is the use case diagram for ATM case study which we see in the last lecture. So here you can see that basically as we discussed in earlier lecture the template of use case. Now you can see that basically what is the use case. हमारे पास use case है क्या? Use case is basically provide as an external perspective. It's not give us the developer's perspective or a developer's point of view. It's a beauty of use case. You can say that it aims at describing a system from external usage viewpoint rather than the developer's perspective. सो बेसिकली यूज़ केस जो है हमें फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है सिस्टम की कि हाउ द यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम और ये हम ऑलवेज एक्ट करता है कस्टमर और यूज़र के दरमियान और सिस्टम के दरमियान और डेवलपर के दरमियान एज अ कॉन्ट्रैक्ट और जो यूज़ केस है इट ऑलवेज शोज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम सो the use case can be deciding factor for building a system either it meets the user needs or not तो जो यूज़ केस है इसके अंदर हम इंटरेक्शन बताते हैं एक रोल के दरमियान एंड एन एक्टर के दरमियान एंड अ सिस्टम के एक्टर की और सिस्टम की आपस में इंटरेक्शन क्या होगी टू अचीव अ गोल तो here we start the discussion of use case diagrams. You can see that here is a boundary drawn over here. This square bound is called the boundary, and on this boundary the right side users on the right side users are called the secondary actors and the left side users are called the primary actors. In this use case we have only users on the left side like ATM customer, and this ATM customer user is a primary actor. And what are the primary actors and secondary actors? It we also discussed in our last lecture. So students, if you remember, basically primary actors are the stakeholders who initiate an interaction with the system to achieve some goal, while secondary actors are those which provide services to the system. And almost secondary actors are not a person. हमारे पास जो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन को इनिशिएट करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए और इनको इस यूज़ केस की बाउंड्री से ऑलवेज लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है जैसे एटीएम कस्टमर हमारे पास यहाँ पर है और जो सेकेंडरी एक्टर है ये हमारे पास हमें सिस्टम को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसमें यूजली हमारे पास पर्सन नहीं होता लाइक बैंक्स की डेटाबेस होती हैं हमारे पास और डिफरेंट अदर हमारे पास मेंटेनेंस के मॉड्यूल्स होते हैं किसके अंदर secondary actor के अंदर in this example we have only primary actor which is the ATM customer and as we discussed earlier in our case study in our ATM example we have basically three use cases. The first use case was the withdraw funds and the second was the user can query account balance and the third one was the transfer funds or a user can transfer funds from one bank account to another bank account within a city or outside the city. So हमने क्या देखा था अपनी ATM की एग्जाम्पल के अंदर यूज़र तीन तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकता है या वो पैसों को विदड्रॉ कर सकता है मनी को निकाल सकता है या वो अकाउंट के बैलेंस की क्वेरी कर सकता है अकाउंट का बैलेंस व्यू देख सकता है या वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में विद इन सिटी या आउटसाइड द सिटी सो बेसिकली दीज आर थ्री फंक्शंस ऑफ ATM example case study which we saw earlier. So here each function is represented with a use case like we have a use case of withdraw funds, we have a use case in oval of query account and we have a use case of transfer funds written in this oval. So here a new concept you can see that these three use cases withdraw funds, query account and transfer funds are included to the validate pin. So now here include is a new concept for you. So it so first of all you should
you should understand it. The include is represented by the dashed line in the use case diagram. So what actually the use case is, so what actually the include is in the use case diagram. तो include हमारे पास use case diagram में है क्या? It is you can say that it is basically used to extract the common parts of the behaviors of two or more use cases. कि हमारे पास जो दो या दो से ज़्यादा use cases हों और उनका जो common behavior हो, उनके कॉमन बिहेवियर के पार्ट्स को यूटिलाइज करने के लिए हम इंक्लूड पार्ट को यूटिलाइज करते हैं, उसको कहते हैं the concept of include. Here you can see that all of these three use cases, withdraw funds, query account and the transfer fund, are dependent on the validate pin use case. Because ATM customer can only perform these three use cases after the validation of pin. After the validation of pin, in other words, we can also say that uh, when two or more use cases, like we have withdraw funds, query account and the transfer funds, these are the different use cases have some common behavior. This common part could be extracted into a separate use case like validate pin, which must be included by the use case to perform these three functionalities. So what does it mean? इसके अंदर इंक्लूड का कंसेप्ट ये है कि यूज़र विदड्रॉ मनी, क्वेरी अकाउंट और ट्रांसफ़र फंड्स की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ केसेस में तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो पिन को वैलिडेट करे, तभी वो अलाउ करेगा एटीएम कस्टमर को कि वो ये तीन फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें. सो दीज थ्री यूज़ केसेस आर inclusive in the validate pin. So system first must validate the pin, and then it will allows the customer to perform these three use cases like withdraw funds, the query account and the transfer funds. So basically here in this slide we are seeing the use case diagram for exactly one or the for exactly or only for the ATM customer. I am not talking about the operator in this slide. So it's a basic concept of ATM example case study for ATM customer. The use case is drawn over here. यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखा कि एटीएम का जो कस्टमर है वो तीन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जिसको हमने यूज़ केसेस में लिखा, विदड्रॉ फंड्स, क्वेरी अकाउंट और ट्रांसफ़र फंड्स में. और फिर वो इंक्लूड कर रहा है वैलिडेट पिन के यूज़ केस को. क्योंकि इंक्लूड वो क्यों कर रहा है, अगर वो वैलिडेट करेगा तब ही सिस्टम अलाउ करेगा तो कि वो विदड्रॉ कर सके, क्वेरी अकाउंट बैलेंस कर सके या फंड्स को ट्रांसफ़र कर सके. सो ऑल ऑफ दीज थ्री यूज़ केसेस मस्ट बी इंक्लूसिव टू द validate pin use case is compulsory. After the validation, then the system will allow the ATM customer to perform these basic three functionalities or three use cases. So let's move to the next slide. Now here you can see that we have another use case. Previous one we have a use case for the ATM customer only. Now here we have a use case for ATM operator. Now we can see that, as I said earlier, the actor on the right side are called the secondary actor and actor on the left side are usually called the primary actor. And here our secondary actor is operator, which is responsible for three kind of tasks. You can see that the ATM operator can add cash, he can start up the ATM machine and shut down the ATM machine. These three basic use cases are performed by the operator for the working of मेंटेनेंस. तो यहाँ पर हमारे पास जो इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि जो एक ऑपरेटर है वो कैसे तीन बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, कि वो कैसे कैश को ऐड करेगा, स्टार्टअप एटीएम मशीन को कर सकता है या उसको शट डाउन कर सकता है. तो ये वाले जो तीन फंक्शनैलिटीज़ हैं ये कौन परफॉर्म करेगा? ऑपरेटर. तो सो बेसिकली हेयर ऑपरेटर इज़ अ सेकेंडरी एक्टर हु कैन प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द एटीएम बाय फिलिंग कैश, by starting up the ATM machine, by shutting down the ATM machine. It's all are the responsibility of the secondary actor, which is the operator. In this diagram you can see clearly. And now we see that the one use case diagram for ATM. Now in this diagram previously two use cases which we see separately. First one was for the ATM customer and the second one was for the operator. Now इससे पहले जो हमने दो यूज़ केसेस देखे, एटीएम कस्टमर का हमने सेपरेट देखा एंड देन हमने ऑपरेटर का यूज़ केस सेपरेट देखा. वो सिर्फ इसलिए सेपरेट देखा कि आपको अलहदा अलहदा से समझाने के लिए ओवरऑल एटीएम के सिस्टम की वर्किंग हो. नाउ फ्रॉम दीज प्रीवियस टू यूज़ केसेस, here we build up one use case diagram for our automated teller machine. So basically you can see that now
ये अब हमारे पास जो एटीएम की डायग्राम यूज़ केस डायग्राम आई है, ये ओवरऑल व्यू है एटीएम की केस स्टडी का। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे द actor on the right side are the secondary actor, which is the operator in our case, and actor on the left side are the primary actor, which are the ATM customer in our case. And now, as we discussed earlier, you can see that ATM customer can perform three basic functions: withdraw funds, querying the balance, and can transfer different funds from one account to another account. And all of these three use cases are inclusive to the validate pin, because to performing these three functionalities, it must be included first for the system to validate the pin. सबसे पहले इन तीन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है कि वो वैलिडेट पिन करे कि आइदर यूज़र का जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है मैचेस विद द सिस्टम पिन नंबर और नॉट. आफ्टर this validation, then the system will allow the ATM customer to perform these basic three functionalities: withdrawing funds, querying account balance, and the transfer of funds. And then we see the concept of include. So what is the include? Basically, as I said earlier, the include relationship we only used to simplify large use case diagram by splitting it into several use cases. Or in other words, you can say that it is only used to extract some common parts of the behaviors of two or more use cases. कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा यूज़ केसेस का कुछ कॉमन पार्ट्स बिहेवियर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इंक्लूड यूज़ करते हैं. लाइक इन ओवर एग्जांपल, these three use cases: withdraw funds, querying balance, and transfer funds are inclusive to the validate pin, because firstly system have to validate the pin, then our system will allow to perform these three basic functions: the withdraw funds, and the querying account balance, and the transfer of different funds. And on the most right side, you can see that the operator can perform three basic use case functions. The first one, the ATM operator, which is the secondary actor, can fill up the ATM cache or add cache. He or she can start up the ATM machine, and he can, or she can shut down the ATM machine. So basically you can see that the customer can perform three basic use case functions: withdraw funds, querying balance, and transfer funds. And the secondary actor, which is the operator in this example, is basically providing us the maintenance services to the ATM. सो इन दिस डायग्राम, इस पूरी डायग्राम के अंदर हमने देखा कि एक कस्टमर एटीएम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और एक ऑपरेटर कैसे पूरी एटीएम मशीन को मैनेज कर रहा है. सो हमारी ओवरऑल केस स्टडी को, जो हमने एटी ऑटोमेटेड टेलर मशीन की पूरी केस स्टडी देखी, जिसके अंदर हमने केस स्टडी की को ब्रेक डाउन किया डिफरेंट डिज़ाइन ओरिएंटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में. उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो हमारा यूज़ केस डायग्राम है फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ बेसिकली इज़ एक्सप्लेनिंग इन दिस स्लाइड. तो इस स्लाइड में हमने अपने ओवरऑल यूज़ केस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन के लिए. So let's discuss the next one is object model, which we are also called a we also called as conceptual static model for problem domain, which consists of different physical classes. So before I going to this diagram, I would like to give you a little bit knowledge about the what is the object model. हमारे पास object model क्या है? So as we discussed earlier, object model define करता है basic concepts को like classes, functions, messages, inheritance, so polymorphism or encapsulation, etc. So basically these are the different tasks of object model. So क्लास डायग्राम के अंदर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, लाइक डिफरेंट क्लासेस. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट एटीएम इज अ मेन क्लास, एटीएम कस्टमर कार्ड रीडर कार्ड डिस्पेंसर आर द डिफरेंट क्लास डायग्राम्स. नाउ हियर यू कैन सी दैट वी हैव अ मेन क्लास विद नेम ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की हमारे पास एक मेन क्लास है. एंड हेयर यू कैन सी दैट द अनदर class or object is operator. One between the ATM and the operator class is one to one relationship. You can see that only one operator can maintains one ATM, or one ATM is only maintains by the exactly one operator. So here is a one to one relationship. One ATM can be maintained by one operator, or one operator only maintains one ATM at a time. So further, the automated teller machine object or class is further divided into uh, other classes, like we have ATM, as we discussed in the ATM
case study, we have a ATM customer. As we see in the ATM customer is basically a primary actor in the use case diagram. So we have an object of ATM customer drive from the ATM, and then we have a card reader driving from the ATM, and card cash dispenser and the receipt printer. तो बेसिकली हमारे पास ये जो ATM कस्टमर, कार्ड रीडर, कैश डिस्पेंसर और रेसिप्ट प्रिंटर की ऑब्जेक्ट्स क्लासेस हैं, ये हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कहाँ से? ATM से, ATM की मेन क्लास से. So basically the relationship between the what kind of relationship between the ATM and these four other objects or classes. तो basically हमने देखा था कि it's basically a type of association. This relationship or diamond symbol showing the association. So basically relationship क्या था? As we discussed earlier, basically relationship refers to the relationship between multiple objects. एसोसिएशन क्या बताता है हमें? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है. सो हेयर आर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक ATM इज एन ऑब्जेक्ट एंड ATM कस्टमर, कार्ड रीडर, कैश डिस्पेंसर एंड रिसिप्ट प्रिंटर आर objects. So basically it's a diamond sign shows the type of association. So association refers to relationship between multiple objects. association ये बताता है कि multiple objects के दरमियान relationship क्या है. So you can say that. So further, association is divided into two categories as we see in the lecture number 5, composition and aggregation. So as I said earlier, composition is strong type of association. Composition is strong type of association. If an association को हम कंपोजिशन कब कहेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट टोटली डिपेंड कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पेरेंट ऑब्जेक्ट, या पेरेंट क्लास कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ईच अदर, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो इस तरह की कंपोजिशन को कहते हैं strong association. So here the association between ATM and other four classes are composition. तो यहाँ पे जो हमारे पास relationship है वो कौन सा होगा? Composition होगा. Because the reason is ATM customer object, card reader object, cash dispenser object and the receipt printer object can't can't survive without the ATM class. These four objects are totally dependent on the ATM upper object. So it's not aggregation, because aggregation is a weak association. So we call it, हम इसको aggregation तब ही बोलेंगे जब ये हमारे पास four objects ATM customer, card reader, cash dispenser and receipt printer independently exist करें ATM से. तो ATM के ये तो basic elements हैं. ATM जो है इन्हीं elements से object से मिलकर ही formation की गई है. तो सो दैट्स वाई दिस रिलेशनशिप इज़ कंपोजिशन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बोलते हैं. बिकॉज ये कंपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये जो फोर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये टोटली डिपेंडेंट हैं ATM के ऊपर. सो बेसिकली दीज आर द फोर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ATM मशीन. सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड कंपोजिशन. इसी वजह से हम इसको कंपोजिशन कह रहे हैं. आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिशन. अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ATM कस्टमर ATM कस्टमर, कार्ड रीडर, कैश डिस्पेंसर एंड रिसिप्ट प्रिंटर है, उनका ATM के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है. 1-to-1 रिलेशनशिप है किस टाइप का? कंपोजिशन. सो एसोसिएशन टाइप का रिलेशनशिप है जिसको बोल रहे हैं हम कंपोजिशन. लाइक वन ATM कैन हैव ओनली one ATM customer at a time. One ATM can have only one card reader. One ATM machine can only have one cash dispenser. And similarly, one ATM can have only one receipt printer. एक ATM का एक वक्त में एक ही ATM कस्टमर उसको डील कर सकेगा. एक ही उसका कार्ड रीडर होगा, एक ही कैश डिस्पेंसर होगा. और नो डाउट एक कैश डिस्पेंसर के मल्टीपल अंदर फर्दर पोर्शंस हो सकते हैं, लाइक 2 डिस्पेंसर्स फर्दर हो सकते हैं. और एक ही रिसिप्ट प्रिंटर होगा जिससे रिसिप्ट्स जनरेट की जाती हैं. एंड फर्दर यू कैन सी दैट द कार्ड रीडर ऑब्जेक्ट एंड द कैश डिस्पेंसर ऑब्जेक्ट एंड द रिसिप्ट प्रिंटर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेस ऑब्जेक्ट्स लाइक ATM कार्ड, ATM कैश एंड द रिसिप्ट एज वेल. एंड these three objects also have 1-to-1 relationship with their base objects. like कि हमारे पास जो एक ATM एक कैश रीडर है वो एक टाइम पर एक ही कार्ड रीड कर सकता है. इसी तरह एक कैश डिस्पेंसर है, एक टाइम के ऊपर एक ही ATM के से कैश को डिस्पेंस कर सकता है. सिमिलरली कोई रिसिप्ट प्रिंटर है, एट वन टाइम वो एक रिसिप्ट को ही प्रिंट कर सकता है. सो यू कैन सी दैट द 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन कार्ड रीडर, cash dispenser and receipt printer with their base objects like ATM card, ATM cash and the receipt. So in this diagram what we see the class diagram, abstract view of class diagram,
which tells us the conceptual static model from the physical classes. इसके अंदर हमने अपनी ऑटोमेटेड टेलर मशीन की केस स्टडी का एक फिजिकल क्लासेस का स्टैटिक कंसेप्चुअल मॉडल देखा कि हाउ दीज क्लासेस विल बी कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन एसोसिएशन टाइप रिलेशनशिप will be exist. So now in this diagram we will see the contextual class diagram for our ATM case study example. Now you can see that we have two kind of actors like primary actor and secondary actor. Primary actor is the ATM customer and the secondary actor is the operator, and as we see earlier कि जो operator है वो interact करता है banking के system के साथ, और वो क्या कर सकता है, CAD को ऐश कर सकता है, system को restart कर सकता है या shut down भी कर सकता है for the sake of maintenance purposes. And you can also see that the ATM customer also interact with the banking system through these four different objects like card reader, रिसिप्ट प्रिंटर, एटीएम कस्टमर एंड कैश डिस्पेंसर. जो एटीएम का हमारा कस्टमर है वो बैंकिंग के सिस्टम के साथ किन चार ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है. कार्ड रीडर के थ्रू, व्हेन यू वेंट टू द एटीएम, कार्ड रीडर से आप कार्ड एंटर करते हैं, वो कार्ड को रीड करता है. और एटीएम कस्टमर इटसेल्फ है जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है. कैश डिस्पेंस किया जा रहा है कि आफ्टर द डिस्पेंस ऑफ कैश आपको रिसिप्ट्स भी प्रिंट करके दी जा रही है. सो बेसिकली दिस contextual class diagram showing that how the ATM customer, which is the primary actor, will interact with the banking system through these four objects: card reader, receipt printer, ATM customer and the cash dispenser. And you can also see that कि ATM कस्टमर का बैंकिंग सिस्टम के साथ रिलेशनशिप क्या है. लाइक you can see that the card reader, you can also see that the how the card banking system can have one banking system can have one or more card reader. Similarly, one banking system can have one or more cash printer or receipt printer, and one banking customer can have one or more ATM customer. And similarly, one banking system कैन हैव वन और मोर कैश डिस्पेंसर. सो व्हाट डज इट मीन. आप देख सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम का सब सिस्टम ऑब्जेक्ट या मॉड्यूल जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वन वन मेंशन डाउन है एरोस के ऊपर. इसका मतलब है कि वन बैंकिंग सिस्टम एंड जो डिफरेंट फोर ऑब्जेक्ट्स हैं, कार्ड रीडर, रिसिप्ट प्रिंटर, एटीएम का कस्टमर एंड कैश डिस्पेंसर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन एस्ट्रिक. इट मीन्स इट हैव वन टू मैनी रिलेशनशिप. सो हम ये कह सकते हैं कि जो एक बैंक का सिस्टम है वो एक या एक से ज़्यादा कार्ड रीडर हो सकता है. रीज़न क्योंकि एक बैंक की पूरे कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं और डिफरेंट ब्रांचेज़ के अंदर एटीएम्स इंस्टॉल्ड हैं. तो एक बैंक सिस्टम का एक या एक से ज़्यादा कार्ड रीडर हो सकता है बिकॉज इट हैव ATM machines all over the country. Similarly, one banking system can have one or more receipt printer, and one banking system can have one or many customers, ATM customers. कि एक बैंक के एक या एक से ज़्यादा कस्टमर्स भी हो सकते हैं. इसी तरह ऑन द लास्ट वन, वन ATM बैंकिंग सिस्टम कैन हैव वन एंड मैनी कैश डिस्पेंसर. एक बैंकिंग सिस्टम के एक या एक से ज़्यादा कैश डिस्पेंसर हो सकते हैं जहां पर डिफरेंट कंट्रीज़ की में उस स्पेसिफिक बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट एटीएम्स को यूटिलाइज करते हुए देर आर डिफरेंट कैश डिस्पेंसर्स आर अवेलेबल. सो दैट्स वाई हमारा जो इस एटीएम की एग्जांपल है, हमारा कोई बैंकिंग सिस्टम है जो हमारा हेड ऑफिस है, उस बैंकिंग सिस्टम से ओवरऑल कंट्री में डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट सिटीज़ में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन तमाम एटीएम्स के अंदर इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे डील किया जा रहा है. एक्चुअली इट्स शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड दीज बेसिक फोर objects which are actually interacting with the primary actor, which is the ATM customer. So basically in this diagram we see the context of class diagram, how the uh, ATM customer is interacting with the system, banking system, and operator is interacting with the banking system. ATM customer is interacting with the banking system through four different objects: card reader, receipt printer, ATM customer, and the cash dispenser. And operator interacts directly with the banking system for this purposes of maintenance, like to add cash, to uh, restart the ATM machine, or to shut down the machine for the sake of maintenance work. So it's all about the idea or a conceptual knowledge of context class diagram. And now let's see another overview of banking system about major subsystems. कि हमारे पास banking system के अंदर कौन कौन से major subsystems हैं. सो इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर
हम मेजर सब सिस्टम्स को देखते हैं कि कौन कौन से सब सिस्टम्स हैं, लाइक एज वी डिस्कस अर्लियर, इट इज़ ऑलमोस्ट हैव रिजेंबलेंस विद द previous one, which is the context class diagram. But you can see that in this diagram we don't have the actors like primary actor and the secondary actor. As in the previous context class diagram, we have the primary actor with the name ATM customer and the secondary actor with the name of operator. So here we have only objects or subsystem which are actually interacting with each other to perform daily life activities of ATM system. Now you can see that कि हमारे पास बेसिक कौन कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑपरेटर इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटर के सेकेंडरी एक्टर के साथ. इस डायग्राम में वी डोंट हैव एनी एक्टर्स लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एक्टर. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सब सिस्टम्स और ओनली ऑब्जेक्ट्स. We are not talking about the actors in this diagram. So you can see that we have a receipt printer, card reader, cash dispenser, operator and the ATM customer as well. You can see that all of these have one to one relationship with the ATM client subsystem. कि जो ATM का हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर itself we have two further subsystems or objects like ATM client based subsystem and the banking server. जो one bank server can have one or more ATM client subsystems. कि जो एक बैंक का सर्वर है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट का सब सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. और वो जो क्लाइंट का सब सिस्टम है वो बेसिकली वन टू वन रिलेशनशिप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं. कौन कौन से ऑब्जेक्ट, लाइक जो जितनी भी रिसिप्ट्स प्रिंट की जा रही हैं एटीएम क्लाइंट के सब सिस्टम के साथ उसका वन टू वन रिलेशनशिप है. जो कार्ड रीडर है उसका भी एटीएम के क्लाइंट के साथ वन टू वन रिलेशनशिप है. इसी सिमिलरली एटीएम कस्टमर, कैश डिस्पेंसर एंड द ऑपरेटर, ऑल ऑफ दीज 5 सब सिस्टम्स have one-to-one relationship with the ATM client-based subsystem. So basically, in this diagram, we are showing the major subsystems of banking system. And now in this diagram, we will see the system context diagram, which we also call a data flow diagram. So before I move into this slide, let's a little bit discuss about the data flow diagram. So students, what are the data flow diagrams? Data flow diagrams, as we discussed earlier, क्या होती हैं. डाटा फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताती है कि डाटा फ्लो हमारे सिस्टम में कैसे करेगा. सो बेसिकली अ डाटा फ्लो डायग्राम शोज व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी इनपुट टू एंड आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम. कि डाटा फ्लो डायग्राम बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन सिस्टम से इनपुट हो रही है एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम से आउटपुट हो रही है. ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन is discussed in the data flow diagram. So we have different levels of data flow diagram. Here in this diagram you can see that the oval the circle is representing the ATM systems is marked with the numeric zero value. So it means that it a level 0 DFT data flow diagram which is the most basic level diagram. और इसको हम context level diagram भी बोलते हैं. आप इस diagram के अंदर देख सकते हैं we have 3 different objects. हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं, बैंक, एटीएम कस्टमर एंड एटीएम ऑपरेटर. और हमारे पास एक ही मेन प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं एटीएम सिस्टम और इसको ज़ीरो के न्यूमेरिक वैल्यू के साथ नोट किया गया है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस एटीएम सिस्टम के इनसाइट्स में क्या है. वी डोंट नीड टू नो अबाउट इट, हमें इसके अंदर नहीं पता क्या है. वी जस्ट वांट टू डिस्कस इन दिस डायग्राम हाउ दिस एटीएम सिस्टम विल इंटरेक्ट विद 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. कि एटीएम का जो सिस्टम है इसके साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. बेसिक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में या लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम में जस्ट हम इंटरेक्शन को देखते हैं सिस्टम की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या है. इट्स सेल्फ सिस्टम की डिटेल्स क्या है उनको फर्दर डीएफडी लेवल्स में डिकम्पोज करते जाते हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे. सो लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम. आप देख सकते हैं कि एटीएम सिस्टम है हमारे पास, वो इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली एटीएम कस्टमर के साथ, ऑपरेटर के साथ एंड द बैंक के साथ. एंड यू कैन सी डैट द एटीएम कस्टमर कैन इनपुट करता है एटीएम के सिस्टम में. इनपुट्स करने के साथ वो कोई कैश जनरेट कर रहा है, उसको रिसिप्ट्स प्रोवाइड की जा रही हैं एटीएम कस्टमर को. और कस्टमर को जो एटीएम सिस्टम है डिफरेंट आउटपुट्स भी रिटर्न कर रहा है. एंड देन यू कैन सी द एटीएम ऑपरेटर मॉड्यूल एज वेल. जो ऑपरेटर है एटीएम का वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एटीएम के सिस्टम में, लाइक कैश को ऐड करना, उसको रीस्टार्ट करना, शट डाउन करना. और जो एटीएम का सिस्टम है वो रिस्पॉन्स दे रहा है ऑपरेटर को कि आइदर द टास्क इज़ बीइंग फुलफिल्ड और नॉट. एंड द लास्ट वन इज़ द बैंकिंग ऑब्जेक्ट और सब सिस्टम. कि बैंक का जो ऑब्जेक्ट या सब सिस्टम है वो एटीएम सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है. लाइक बैंक डिफरेंट रिक्वेस्ट भेज रहा है
एटीएम सिस्टम डिफरेंट रिक्वेस्ट्स भेज रहा है बैंकिंग के ऑब्जेक्ट को। लाइक अगर कस्टमर ने कोई कैश विदड्रॉ कर लिया है तो एटीएम सिस्टम फौरी से उसको अपडेट करेगा मेन बैंकिंग के सर्वर में, मेन बैंकिंग के ऑब्जेक्ट में या सब सिस्टम में, कि यूज़र ने इतने पैसे विदड्रॉ कर लिए हैं, अब न्यू बैलेंस उसका फौरी से अपडेट कर देगा। और आफ्टर द अपडेशन जो बैंकिंग सिस्टम है फौरी से रिस्पॉन्स देगा एटीएम के सिस्टम को। सो इन दिस डायग्राम वी सी द बेसिक level 0 data flow diagram, how different kind of information will be flow out in the ATM system. We don't discussing the internal details of this ATM. We just discussing the how different objects or subsystems will interact with the ATM system. So a level 0 data flow diagram is also called the context diagram, और यू कैन ऑल्सो से डैट ऐसी डायग्राम जिसके अंदर हमारे पास जस्ट एक ही प्रोसेस हो और उस एक प्रोसेस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या सब सिस्टम्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ऐसी डायग्राम को लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोलते हैं. सो लेट्स फर्दर डिकम्पोज दिस एटीएम सिस्टम इनटू मोर डिटेल टू गेट बेटर आइडिया अबाउट द automated teller machine. So here you can see that we further divided our ATM system into 4 processes. The process number 1 is called the control of ATM, which actually provides the control to all other processes. And the number 2 process is interface with the customer, and number 3 process is interface with the operator, and number 4 process is interface with the bank. And now you can see that in the previous example, in this example we say we just have a main process in this circle is the ATM system. We don't discuss the internal details of the ATM. हमने ATM की यहाँ पर internal details कोई भी discuss नहीं की. अब इसी level 0 data flow diagram को, जिसको ATM system का नाम दिया, हम further decompose कर रहे हैं 4 processes में. Like control of ATM is number 1, interface with customer, with operator and with bank. So in this diagram हमारे पास basically 4 processes हैं. level 0 में हमारे पास just एक ही process था, इसी वजह से हम उसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोल रहे थे और लेवल 0 डायग्राम भी कह रहे थे. एंड नाउ यू कैन सी डैट कि हाउ द कंट्रोल एटीएम इज कनेक्टेड विद द अदर 3 प्रोसेसेस, इंटरफेस विद कस्टमर, ऑपरेटर एंड विद द बैंक. एंड जो कस्टमर के साथ इंटरफेस है, कस्टमर क्या कर सकता है, इनपुट करेगा कोई भी कस्टमर कोई भी इनपुट करेगा और वो मैसेज किसको सेंड करेगा, फौरी से कंट्रोल एटीएम को जो भी इनपुट्स कर रहा है. यू कैन इधर आप एक बात नोट कर सकते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ एटीएम का है वो अदर 3 मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है और डायरेक्टली इन 3 मॉड्यूल्स को ओवरऑल जो कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, ये कंट्रोल एटीएम का मॉड्यूल इन 3 डिफरेंट इंटरफेसेस को प्रोवाइड कर रहा है. एंड नाउ यू कैन सी दैट in the interface with the customer can input from the customer, and in this regard of input, the customer can get the cash, he or she can receive the receipts, and also this interface with the customer provides output to the customer. और ये सारे का सारा जो इंटरफेस डिफरेंट कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एटीएम के कंट्रोल के साथ, जहाँ से कस्टमर के मैसेज का इंटरचेंज हो रहा है. एंड यू कैन सी विद द डॉटेड लाइन. And now the next one is interface with operator. Now what is the interface with the operator? ऑपरेटर का कंट्रोल एटीएम के साथ भी इंटरफेस है. लाइक ऑपरेटर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देता है टू ऐड कैश, टू रीफिल कैश, और टू ही द ऑपरेटर नीड्स टू शट डाउन द एटीएम. जो ऑपरेटर है एटीएम को शट डाउन करना चाह रहा है, कैश को रीफिल करना चाह रहा है, तो यहाँ इस तरह के कोई भी इंस्ट्रक्शंस गिवन कर रहा है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं डायरेक्टली जो इंटरफेस है ऑपरेटर का डायरेक्टली कनेक्टेड है इन द डॉटेड लाइन्स विद द कंट्रोल एटीएम. सो जो भी मैसेज है ऑपरेटर के इंटरफेस का वो एटीएम के कंट्रोल को सेंड किया जाएगा, और जो एटीएम का कंट्रोल है वो मैसेज ऑपरेटर के इंटरफेस को रिवर्ट बैक भी करेगा. एंड देन आफ्टर द ऑपरेटर गेट्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एटीएम कंट्रोल. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट वन, द फोर्थ वन, प्रोसेस इंटरफेस विद द बैंक. जो एटीएम का कंट्रोल है उसका बैंक के साथ भी इंटरफेस है. लाइक बैंक डिफरेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, कि डिफरेंट रिक्वेस्ट हमारे पास क्या क्या जनरेट कर सकता है, कि हमारे पास कंट्रोल एटीएम से है कि कस्टमर ने कैश को विदड्रॉ कर लिया है, और उस कैश से विदड्रॉ करने के बाद जो कंट्रोल एटीएम है वांट टू अपडेट द स्टेटस ऑफ द कस्टमर करंट अकाउंट बैलेंस, कि अब उसका जो भी करंट अकाउंट बैलेंस है, जो कंट्रोल एटीएम का प्रोसेस है वो उसको अपडेट करना चाह रहा है बैंक के इंटरफेस में. तो इस तरह से जो बैंक है वो मैसेज रिसीव करेगा कंट्रोल एटीएम से, और कस्टमर का विदड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस डिडक्ट करके करंट बैलेंस है उसको अपडेट कर देगा. और इस तरह से जो एटीएम कंट्रोल है बैंकिंग के इंटरफेस से रिस्पॉन्सेज डिफरेंट जनरेट रिसीव करता रहता है. सो इन दिस डायग्राम यू
we'll get the clear idea about how these different four processes interacting with each other to provide services to customer, operator, and also with the bank. And now you can see that how the interface with the customer is connected with the interface with the bank, कि हमारे पास जो प्रोसेस नंबर 2 and 4 है कस्टमर का एंड बैंक का, वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं थ्रू एटीएम कार्ड एंड ट्रांजेक्शन। हाउ एटीएम कार्ड एंड ट्रांजेक्शन्स हमारे पास कस्टमर और बैंकिंग आपस में कनेक्ट, जो कस्टमर है और इंटरफेस और बैंक है ये आपस में भी तो कनेक्टेड है ना, किसके थ्रू कनेक्टेड है, थ्रू एटीएम कार्ड एंड डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। ये कस्टमर के और बैंकिंग की कनेक्टिविटी को भी शो कर रहा है। एंड नाउ अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें इन प्रीवियस डायग्राम, हमारे पास मेन प्रोसेस एक था एंड अदर वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, एटीएम, कस्टमर, ऑपरेटर एंड बैंक। हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स थे और एक मेन प्रोसेस था, तो जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि डिफरेंट ये ऑब्जेक्ट्स इस मेन प्रोसेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। इन सेट इंटरनल डिटेल्स क्या हैं वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट इट। एंड इन द वेरी नेक्स्ट डाटा फ्लो लेवल 1 डायग्राम आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रीवियस लेवल 0 DFT में ऑब्जेक्ट्स थे या सब सिस्टम्स थे उनको हमने प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, जैसे हमारे पास लास्ट में कस्टमर का सब सिस्टम था या ऑब्जेक्ट था, ऑपरेटर का ऑब्जेक्ट था, बैंक का ऑब्जेक्ट था, उन लेवल 0 डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दिया है। सो हेयर वी सी द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द ATM system, and this diagram is actually a data flow level 1 diagram. Why we call it level 1 diagram? As you see in the previous slide, we have only one process. We further decompose this one process into four other processes which are actually giving us the internal details of the system. That's why we are calling it level 1 data flow diagram. So basically what the data flows tells us the how the data or information will be input to and output to from the system. So now here let's discuss the level 2 of data flow diagram. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि data flow diagram का level 2 क्या है। Now in the previous slides you see that we have basically four processes: control ATM, interface with customer, operator and the bank. अब हम इन फोर प्रोसेसेस में से जस्ट एक प्रोसेस को उठाएंगे और उसके इंटरनल जो वर्किंग है उसको फुल्ली डिकम्पोज करेंगे ताकि डिज़ाइन ओरिएंटेड एस्पेक्ट से डाटा कैसे मूव कर रहा है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान, उसको हम देखेंगे कि डाटे का फ्लो क्या है, हाउ द डाटा कम्स इन एंड हाउ द डाटा कम्स आउट फ्रॉम द सिस्टम विल बी फर्दर डिकम्पोज्ड। तो हम इस इन फोर्थ वन में से किसको डिकम्पोज करेंगे, कंट्रोल एटीएम को, जिसको प्रोसेस नंबर 1 कहा गया है। इन दिस लेवल 2 डाटा फ्लो डायग्राम द कंट्रोल एटीएम इज़ फर्दर डिवाइडेड। सो कंट्रोल 1 एटीएम को हम डिवाइड करेंगे फर्दर लेवल्स में, किस अदर प्रोसेस के साथ, वो प्रोसेस है हमारे पास इंटरफेस विद द कस्टमर। बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसेस हैं, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 प्रोसेस, नंबर 4 प्रोसेस। ये जो 3 प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोसेस नंबर 1 जो कंट्रोल एटीएम है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस मेन एटीएम के कंट्रोल के साथ जो अदर 3 प्रोसेसेस है वन बाय वन इनको डिटेल्स में डिकम्पोज करेंगे कि हर प्रोसेस कैसे डिटेल्स में एटीएम के कंट्रोल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डाटा इज़ एक्चुअली being flowed from one process to another process to get the better idea about how what kind of and how the information is actually being input to the system and output from the system. Let's discuss in this slide. And here you can see that we have the main control ATM, the name with the name process, and what are we are doing in this slide, we are decomposing the interface with the customer प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस नंबर 2 था जिसको हमने नाम दिया था इंटरफेस विद कस्टमर, जो कस्टमर के साथ हमारा इंटरफेस था उसको फर्दर, जिसको हमने 2 के न्यूमेरिक वैल्यू से असाइन किया था, उसको हम फर्दर डिकम्पोज कर रहे हैं 4 अदर प्रोसेसेस में, जिनको अब हम नेम असाइन कर रहे हैं 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। एंड 1, 2, 3 फोकसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। और जो एटीएम का कंट्रोल है आप देख सकते हैं कैसे कस्टमर रीड एंड वैलिडेट कर रहा है प्रोसेस नंबर 2.1 में, फिर 2.2 प्रोसेस में कैसे यूज़र से इनपुट्स ले रहा है उसको डिस्प्ले कर रहा है, एंड कैसे वो रिसिप्ट्स को प्रिंट कर रहा है, एंड नंबर 3 कैसे कैश को डिस्पेंस कर रहा है। एंड ऑल दिस 3 processes are 4 processes of main process number 2, which is a customer with the interface, is showing that how the data will or the information will be communicating with the main central process, which we indicated with a dotted line, which we called a control ATM process. So this diagram is
self-explanatory and you can get better idea by spending 2 to 3 minutes over it. एंड नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्टेट चार्ट फॉर एटीएम कंट्रोल. हम अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्टेट चार्ट्स. अब स्टेट चार्ट्स देखेंगे क्या है कि हम जो वैलिडेट पिन है, वैलिडेट पिन का यूज़ केस हमने देखा था ना. वैलिडेट पिन का यूज़ केस हमने देखा था जो फंड्स ट्रांसफ़र, क्वीरिंग अकाउंट बैलेंस और फंड्स ट्रांसफ़र को इंक्लूसिव कर रहा था विद द वैलिडेट पिन के साथ. कि बेसिकली कस्टमर ये 3 यूज़ केसेस फंक्शंस तब ही परफॉर्म कर सकता था जब उसने वैलिडेट पिन को इंक्लूसिव किया हो, पिन को वैलिडेट किया हो. किसके साथ? सिस्टम के साथ. सो नाउ वी विल डिस्कस द स्टेट चार्ट के हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स पॉसिबल क्या हो सकती हैं. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको पिन भी बोलते हैं, उसको वैलिडेट करने के लिए क्या कौन सी हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इट्स ये हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है द मोस्ट राइट साइड विद द आइडल स्टेट which will display the entry or a display welcome will be shown to the interface of the ATM. And then you can see that the customer will insert the card and the system will get the pin. After getting the pin and get pin from the customer and or it waiting for the pin. After the ATM will wait for the pin will be entered by the customer. As the pin is received by the system, it will now validate the pin. So after validating the pin, like it will display different menus or the user can update status and our system will update for waiting for the customer choice. So basically ये जो डायग्राम है हाफ इस पेज पर रिप्रेजेंट की, इस स्लाइड पे रिप्रेजेंट की गई है और हाफ इस स्लाइड के ऊपर. सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि पिन को वैलिडेट करने के लिए डिफरेंट स्टेट चार्ट्स हमारे पास क्या हो सकती हैं. जैसे ही आप एटीएम के अंदर एंटर होते हैं, जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, वो जो सिस्टम है हमारा आइडल स्टेट में है और आपके पास एटीएम के स्क्रीन के ऊपर वेलकम मैसेज आ रहा है. ठीक है, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं. एज यू इंसर्टेड द कार्ड, जैसे ही कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपसे फौरी पिन डिमांड की जाती है, गेट पिन, कि पिन आप एंटर करें. तो जो सामने स्क्रीन है, इट नाउ इट्स द सेकंड स्टेट वेटिंग फॉर द पिन, कि अब वो आपके पास पिन के लिए वेट कर रहा है. तो इन द नेक्स्ट फेज आप क्या करते हैं, यू एंटर द पिन, आप पिन को एंटर करते हैं और जो सिस्टम है पिन को वैलिडेट करता है. जो नेक्स्ट स्टेट क्या है, वैलिडेशन ऑफ पिन. जब हमारे पास एटीएम की मशीन से ये मैसेज हमें वॉइस आ रही होती है, प्लीज़ वेट योर अकाउंट इज़ बीइंग प्रोसेसिंग, कि आपके अकाउंट की प्रोसेसिंग की जा रही है, इसको वैलिडेट किया जा रहा है. आफ्टर द वैलिडेशन इज़ कंप्लीट, the ATM displays as the different menus and give us the different details, and now the ATM is waiting for the customer choice what kind of input he or she will give to the ATM. And now in the next slide we can see that अब इस slide के अंदर हम ये देख सकते हैं कि आप अगर मोस्ट लेफ़्ट साइड से देखें कि सबसे पहले हमने देखा कि कैसे जो पिन है हमारे पास एटीएम में जैसे ही हम एंटर होते हैं हमारे पास आइडल स्टेट में है, वेलकम या एंट्री का डिस्प्ले हमारे पास आ रहा है. और उधर से जो हमारा एटीएम की एग्जांपल है, हम प्रीवियस ये जो 3 डॉटेड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कैसे हमने इसमें देखिए आप अगर प्रीवियस स्लाइड में कि आइडल स्टेट में थे, वेटिंग फॉर पिन किया, वैलिडेट पिन किया एंड देन वेटिंग फॉर कस्टमर चॉइस, कि अब वो कस्टमर की चॉइस के लिए वेट कर रहा है. तो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस था इसको शो ऑन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसको एक स्लाइड पर ही प्रेजेंट कर सकूं. फ्रॉम आइडल स्टेट टू वेटिंग फॉर कस्टमर चॉइस की जो जो स्टेट हैं हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर अहेड व्हाट विल बी गोइंग ऑन. तो हम इसे आगे डिस्कस करते हैं कि अब इसे आगे क्या होगा. सो आइडल टू वेटिंग फॉर कस्टमर चॉइस की जो स्टेट्स हैं ये प्रीवियस वाली ही हैं. डॉटेड लाइन्स का मतलब ये है कि सो ऑन यहाँ पर इसको वन स्लाइड में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है. एंड नाउ यू कैन सी डैट जब ओवर एटीएम इज़ वेटिंग फॉर कस्टमर चॉइस के लिए वेट कर रहा है तो बेसिकली द यूज़र कैन परफॉर्म द विदड्रॉल मनी. वो विदड्रॉ सेलेक्ट कर सकता है कि हाउ मच अमाउंट ही और शी वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम द एटीएम, और वो डिस्प्ले का वेट करेगा कि वो अमाउंट एंटर कर सके. आफ्टर प्रोसेसिंग विदड्रॉ स्टेट में चला जाएगा. जब वो प्रोसेस करेगा विदड्रॉल इज़ ओके, यानी कि इनफ सफिशिएंट बैलेंस है, तो वो कैश को डिस्पेंस कर देगा और स्टेटस को अपडेट करने के लिए मैसेज ट्रांजिशंस को भेज देगा डिस्पेंसिंग की तरफ. तो जब डिस्पेंसर के पास जाएगा वो कैश को डिस्पेंस कर देगा अपने डिस्पेंसर से बाहर और रिसिप्ट को प्रिंट कर देगा प्रिंटिंग की स्टेट से. एंड देन अल्टीमेटली एक्नॉलेज्ड का मैसेज आ जाएगा कैश डिस्पेंस की तरफ के कैश सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया गया है कस्टमर को, और कार्ड को इजेक्ट कर दिया जाएगा. जैसे ही कार्ड एटीएम से इजेक्ट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, द कार्ड इज़ इजेक्टेड. तो एटीएम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेइंग भी आ जाएगा योर कार्ड इज़ इजेक्टेड, यू टेक योर कार्ड एंड यू
टर्मिनेट फ्रॉम द एटीएम बूथ, आप एटीएम बूथ से बाहर चले जाएंगे और सिस्टम जो हमारे पास एटीएम की स्टेट है वो फिर से वही पहले वाली आइडल स्टेट में आ जाएगा। वो दोबारा से वेलकम मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। ये वेलकम मैसेज क्या शो ऑफ कर रहा है, नाउ दिस एटीएम इज़ फंक्शनली नाउ रेडी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेक्स्ट यूज़र। कि अब ये डिस्प्ले वेलकम मैसेज इसलिए दे रहा है कि अब इसने एक यूज़र की जो भी ट्रांजैक्शन उसको फुलफ़िल कर दिया है, अब ये दूसरे यूज़र को, कस्टमर को जो बाहर लाइन में है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। सो नाउ दिस काइंड ऑफ वे, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स चेंज होती रहती हैं और वन बाय वन कस्टमर्स हमारे पास आते जाते हैं और स्टेट्स अपडेट होती रहती हैं और डिफरेंट यूज़र्स को हमारा जो एटीएम कंट्रोल है विदड्रॉ फंड्स का, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते जाते हैं डिफरेंट यूज़र्स को वन बाय वन। सो इन दिस वे दिस स्टेट चार्ट actually showing the ATM control, how withdraw funds of use case will be actually working. So next here is the top level ATM control statement. So until what we see here, अभी तक जितना भी हम देख चुके हैं तो उसकी एक टॉप लेवल एटीएम के को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसका एक स्टेट चार्ट है। तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं। यू कैन सी दैट द फर्स्ट वन इज द आइडल स्टेट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एंड द प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट स्टेट, एंड द प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेटिंग। एंड ऑन द टॉप अपर नोड इज द क्लोज डाउन, कि एटीएम को आप क्लोज या शट डाउन स्टेट में कैसे जा सकती है। एंड दिस बिलो सर्कल इज़ एक्चुअली शोइंग द इनिशिएटेड प्रोसेस, के हाउ द सिस्टम इज़ एक्चुअली इनिशिएटिंग, कि सिस्टम यहाँ से इनिशियल स्टेट पे है, कैसे स्टार्ट होगा। होने के बाद जैसे ही डिस्प्ले सिस्टम डाउन्स का है तो इधर से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो सिस्टम को हम अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। अप या डाउन कौन कर सकता है? ऑपरेटर, बिकॉज ऑपरेटर या मेन बैंकिंग सिस्टम। तो इन केस वी आर सपोजिंग द सिस्टम हमारा स्टार्टअप है, तो वो अर्ली में आइडल स्टेट में होगा, वेलकम मैसेज होगा जहाँ पे कस्टमर आता है, कार्ड को इंसर्ट करता है और पिन के लिए डिमांड करता है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाती है? कस्टमर की इनपुट को प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस करने के बाद कस्टमर किन तरह के तीन ट्रांजैक्शंस कर सकता है? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द एटीएम केस स्टडी, द यूजर बेसिकली कैन परफॉर्म थ्री फंक्शंस। ही और शी कैन विदड्रॉ फंड्स, ही और शी कैन क्यूरिंग द बैलेंस, he or she can funds transfer from one bank to another bank. These three functions you can be seen in these arrows, uh, मूविंग फ्रॉम प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट टुवार्ड्स द प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। के ट्रांसफ़र हम बैलेंस कर सकते हैं, क्वेरी अकाउंट बैलेंस कर सकते हैं, या विदड्रॉ मनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर इट रीचेस टू प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, वट एवर द कस्टमर इज सिलेक्टेड वट काइंड ऑफ फंक्शन ही और शी वांट टू परफॉर्म्स। कस्टमर इन तीनों टास्क में से जो भी काम परफॉर्म करना चाह रहा है वो प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के पास जाएगा। एंड देन फ्रॉम हेयर, अगर उसने विदड्रॉ किया, ही और शी विल डिस्पेंस द कैश एंड अपडेट द स्टेटस टू टर्मिनेटिंग सेक्शन ट्रांजैक्शन। अगर उसने अगर तो उसने हमारे पास उस क्वेरिंग को बैलेंस किया है तो उसका जो भी रिसिप्ट है उसको उस प्रिंट आउट करके उसका स्टेटस अपडेट कर देगा, या जो भी उस वो फंड्स ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो उसका स्टेटस भी अपडेट कर देगा। ये सब टुवार्ड्स किसकी तरफ जा रहे हैं? टर्मिनेटिंग सेक्शन की स्टेट की तरफ, जहाँ से हम टर्मिनेट कर रहे हैं। एंड नाउ यू कैन सी दैट द प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट इज़ आल्सो लिंक्ड विद द टर्मिनेटिंग ट्रांजैक्शन, कि जो प्रोसेसिंग कस्टमर की इनपुट की स्टेट है वो टर्मिनेटिंग ट्रांजैक्शन स्टेट के साथ भी मैप कर रही है। लाइक जो कस्टमर है उसने पिन एंटर कर रहा है, वो वहीं पर उसको कैंसिल करना चाह रहा है, कोई भी टास्क फंक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहता, ही और शी जस्ट विल प्रेस द कैंसिल बटन, द सिस्टम विल टर्मिनेट द ट्रांजैक्शन। जो सिस्टम एटीएम का है वो ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट कर देगा। इन अदर केस, अगर कार्ड जो है 3 अटैम्प्ट्स में आपने कोई रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग पिन नंबर एंटर कर दिया है, या आपका कार्ड स्टोलन हो चुका है, या आपने उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट की हुई है, तो कार्ड विल बी सीज्ड और कन्फिस्केटेड बाय द सिस्टम। तो जो कार्ड है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा आपकी एटीएम सिस्टम की तरफ से, अगर आपने तीन बार से ज़्यादा गलत पासवर्ड एंटर कर दिया या आपका कार्ड चोरी हो चुका है। तो इन दिस केस दैट सिस्टम विल आल्सो टर्मिनेट दैट ट्रांजैक्शन, एंड आफ्टर टर्मिनेटिंग द सिस्टम closed after some elapsed time, you can see that the system will again come back to the idle state. In case the इन अगर हमारे पास प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन से हमने कोई विदड्रॉ फंड्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन को पास आउट किया है और उसमें इनफ अकाउंट बैलेंस नहीं है, और यहाँ देर आर सम अदर बैंक्स का लिंक्स वगैरह डाउन कर गया है, तो वो टर्मिनेटिंग ट्रांजैक्शन से इंटायर एटीएम को ही क्लोज डाउन भी कर सकता है। तो देर इज़ आल्सो लिंक बिटवीन टर्मिनेटिंग ट्रांजैक्शन एंड क्लोज डाउन ट्रांजैक्शन। यू कैन get the better, clear and comprehensive idea about the top level ATM control through this state chart. It's well understandable diagram.
So now let's discuss what are the use case. Sorry, let's discuss the sequence diagram. तो अब हम discuss करते हैं कि basically what are the sequence diagrams. uh, I will I will teach you how to draw sequence diagram हम कैसे बना सकते हैं from the use case. Let's we took the validate pin use case. Why I am taking the again and again the validate pin use case, because basically all of our three मेन यूज़ केसेस आर इंक्लूसिव टू द वैलिडेट पिन, कि हमारे जो तीन यूज़ केसेस हैं, विदड्रॉ ऑफ फंड्स, क्यूरिंग अकाउंट बैलेंस एंड द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, आर इंक्लूसिव टू वैलिडेट पिन. अगर हमारा वैलिडेट पिन का मॉड्यूल एक्टिवली सिस्टम से वैलिडेट पिन को करेगा तब ही हम ये थ्री फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो उस वैलिडेशन ऑफ पिन के यूज़ केस के लिए मैं आपको ये सीक्वेंस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इट इज़. सो यू कैन सी दैट वी हैव अ एटीएम कस्टमर विच इज़ अ प्राइमरी एक्टर in our use case diagram, if you remember. And now on the upper part you can see the different objects like card reader object, atm control, customer interface, atm transaction, and the bank server. All of these representing the objects. You also can say that the subsystems or the entities which are interacting with the system. So now you can see that कि जैसे ही कस्टमर एंड ऑन द एटीएम कस्टमर बॉटम यू कैन सी द टू वर्टिकल लाइंस. एक्चुअली दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग द लाइफ लाइन ऑफ द एटीएम कस्टमर. व्हाट डज इट मीन? ये लाइफ लाइन हमें ये बताती है कि कस्टमर किस किस टाइम पर कस्टमर इंटरेक्शन कर रहा है एटीएम सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. सो नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट द नंबर वन इज़ द एटीएम कस्टमर विल एंटर द कार्ड. कार्ड रीडर में इनपुट करेगा. कार्ड रीडर का ऊपर जो इंटरफेस है, इफ़ यू कैन सी विद द डॉटेड लाइंस, कार्ड रीडर का जो इंटरफेस है उसके ऑब्जेक्ट के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ जो कस्टमर है इन कार्ड को इनपुट करेगा. आफ्टर इनपुटिंग द कार्ड फर्दर जो कार्ड रीडर का इंटरफेस है वो एटीएम कार्ड से कार्ड का इनपुट डाटा करेगा. एंड देन जो एटीएम कार्ड है वो एटीएम कंट्रोल से लिंक्ड है, एंड दिस एटीएम कंट्रोल का लिंक्ड है वो कार्ड को क्या कर, कार्ड के डाटा को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा एटीएम के कंट्रोल में. एटीएम के कंट्रोल में आ गया. देन यू विल सी द कस्टमर इंटरफेस. देन हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है जहाँ पर मेंशन होता है गेट पिन. हम पिन को रिवर्स बैक में प्रॉम्प्ट करते हैं एटीएम के कस्टमर के पास. रिवर्स बैक में फ्लो हो जाएगा कि नाउ यू हैव टू प्रॉम्प्ट द पिन. अब आपको जो पिन है वो एंटर करनी है. नाउ दिस वैलिडेशन पिन बेस्ड यूज केस डायग्राम इज़ फर्दर, इसको एक पेज के ऊपर या एक स्लाइड के ऊपर रिप्रेजेंट करना आपको समझाना पॉसिबल नहीं है. तो इट्स द फर्स्ट हाफ. नेक्स्ट फर्स्ट हाफ इज़ will be in next slide. And now in this slide you can see that after that हमारे पास जो ATM का कस्टमर था, he or she get the pin input to the customer interface. And now till number 2 point we successfully input the personal identification or pin number to the customer interface. After the ATM system gets the pin input, now customer interface will request for card request, like it will get the card data. After getting the card data, now you can see that the customer interface will get the ATM transaction. So customer information about what kind of pin it is being entered, कि उसने क्या पिन को एंटर किया है, जो भी उसने जो डाटा उसने रिसीव किया कस्टमर के इंटरफेस ने एटीएम के कंट्रोल से, जो कस्टमर ने पिन इनपुट की थी, जो भी अब उसको ने जो डाटा एंटर किया है उस पिन को उसने वैलिडेट भी तो करना है. किससे वैलिडेट करना है? फ्रॉम द कस्टमर इंटरफेस टुवर्ड्स द एटीएम कंट्रोल. आफ्टर द वैलिडेशन ऑफ पिन, जो एटीएम कंट्रोल जो है उस पिन को, जो अब कस्टमर ने डाटा एंटर कर दिया है, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर कर दिया है 2.4 में. एंड नाउ the ATM control in the 2.5 will validate this personal identification number through the or the pin number from the main bank server. As we see in the earlier data flow diagrams, our ATM control also connected with the bank server object, from where our ATM control verifies or validates either the pin is valid or not. After the ATM control validated the pin from the bank server, he or the banking server send back message to the ATM control about the pin is valid or the pin is not valid. If over the ATM main control receives the message the pin is valid, now the ATM customer will allow to perform the further three types of transactions, like he or she can fund transfer, querying balance, and can funds transfer from one bank to another bank within city or outside the city. Let's suppose if the pin is not validated by the bank server, now what the ATM control will do? Now if the
ATM control identifies that the pin is not valid, the ATM control will give another chance to ATM customer, which will be the second attempt. And again, if the pin is unvalid by the banking server, the ATM control gives the last, which is the third attempt to the ATM customer to again enter the valid pin. If the pin is again wrong entered by the customer, now the banking server again showing the message the wrong pin number to the ATM control. Now three attempts are fulfilled and user is unable to provide the validate pin, and now ATM control will seize the card और confiscated the card. अब ATM जो कंट्रोल है वो कार्ड को सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा, क्योंकि कस्टमर 3 बार जो पिन है सही एंटर करने में नाकाम हो चुका है, पिन को वैलिडेट नहीं कर सका, सो इसलिए उसका कार्ड अब जब्त किया जा चुका है. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द आइडियाज़ ऑफ हाउ सीक्वेंस डायग्राम्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स, फिजिकल क्लास डायग्राम्स, use case templates, some static diagrams, all structural behavioral aspects we discussed in this UML based modeling. So it's all about unified modeling language we see in these tools lectures, lecture number 6 and 7, with the help of some real world ATM example, how we can break down the design specific oriented requirement, and from this design specifications how we can uh, use a unified modeling language to provide different perspective to the uh, developers team from the architectural point of view. So till here our unified modeling topic is covered, and you can also do practice in at your end with the help of some notes on the internet. Different examples, different diagrams, different case studies are also available for the better understanding of unified modeling language. Hope so this lecture will be helpful for you. And now till here our unified modeling language is discussion is comes to an end, and this lecture is also ended here.